Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. I welcome you to all this seminar. First of all, I would like to introduce myself. My name is Hamda. I am from Samrial Sialkot and I have done my graduation from Government University Sialkot. And now I am serving as the head of external affairs of Pakistan Eagle Foundation. The founder of Pakistan Eagle Foundation is Engineer Muhammad Saad. He is the president of Iraq and NASLA, State University of Agriculture. The co-founder of Pakistan Eagle Foundation is Ma'am Naima Shehzadi, and he is the director of Technology Academy. And she is doing BS Botany from GC University, Sialkot. First of all, I want to share some basic goals of Pakistan Eagle Foundation. Pakistan Eagle Foundation is a platform for the youth empowering in which we train youth to thrive and we help each other to achieve our goals. The association will help you to enhance your skills and it also helps you to set your goals according to your own interest and provide you to huge opportunities where you can explore new things. Our today topic is about breast cancer. As we know that the breast cancer is spreading rapidly, statistics indicates that the breast cancer related complications are among the top cause of death among women for over 23% of all women death in all the world in 2014. The great cause of breast cancer is lack of information about this disease. So our today first objective is to aware people about this harmful disease and how we can get it out of this. I heartily welcome to our respectable speaker, Dr. Gulsher Hassan. Today he will discuss about the rising topic of concern, that is breast cancer, and to raise awareness about it, Dr. Gulsher Hassan will talk about it. Yes, Doctor. Assalamu alaikum to all the respectable audience. I am Dr. Gulsher Hassan from third year MBBS currently studying in Kaiser Medical College, Bahawalpur. I am very thankful to the Pakistan Eagle Foundation for organizing a webinar on this important issue. So today our topic of concern is about breast cancer. तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि हम आज इस पे क्यों बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ईगल फाउंडेशन ने आज एक वेबिनार क्यों कंडक्ट करवाया। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं क्योंकि हर साल जो है ना हमारे पास 1.3 मिलियन केसेस आते हैं, नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा जो है ना 4 लाख खवातीन की डेथ हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर से हर साल। उसके अलावा ये जो है ना खवातीन के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, सबसे ज्यादा खवातीन की जो अमवात हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। बाकी जो कॉजेज ऑफ डेथ हैं वो हमारे पास सेकेंडरी हैं। सबसे ज्यादा खवातीन की डेथ इस इशू की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कैंसर के हवाले से कि बेसिकली कैंसर होता क्या है। जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आंतों के सेल्स हो गए, हमारे जिगर के सेल्स हो गए, हमारी स्किन के सेल्स हो गए, ये एक खास तरतीब के तहत जो है ना इनका बनना और इनका टूटना होता है। अगर ये हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल्स एक बेतरतीबी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएं और बढ़ के एक ट्यूमर बनाते हैं, आम जुबान में इसको हम गिल्टी कहेंगे, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर सेल्स जो है ना ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं और इनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्यूमर हमारी खुराक की नाली में बन गया या हमारी सांस की नाली में बन गया तो वहाँ पे तंगी करा देगा, हमें सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो ये तो था बेसिकली एक छोटा कैंसर के बारे में। हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है ब्रेस्ट कैंसर। अब इसकी हम कॉजेज की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। हाँ, जेनेटिकली ये हो सकता है। अगर किसी की खानदान में अगर किसी फीमेल को हुआ है, अगर किसी की अम्मी को ये इशू हुआ है, अगर किसी की नानी अम्मा को ये इशू हुआ है, तो उस खानदान की जो खवातीन है उनमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें अगर काफी सारी रिसर्चेस जब की गई
तो उनमें 2 कॉमन वजूहात ये भी सामने आई कि जो ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती या जिनकी लेट शादी होती है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हर 10 ख़वातीन में से 1 ख़ातून को ये चांस है कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का। ये अपना काइंडली माइक म्यूट कर लें जिनका। तो इनिशियली जो है ना, जब ये ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, तो ये पेनलेस होता है। अगर कोई खातून है, अगर उसको प्रॉपर्ली अवेयर नहीं किया गया इस बारे में, तो वो इसको इग्नोर कर देगी। अगर किसी के ब्रेस्ट के अंदर छोटा सा ट्यूमर बना है, इनिशियली वो होता है पेनलेस, ठीक है। अगर किसी फीमेल को पता भी है तो वो इसको इग्नोर करेगी। एक झिझक होती है इस बारे में बात करने से, तो इनिशियली वो उसको इग्नोर कर देंगी। अगर उनको प्रॉपर्ली अवेयरनेस नहीं दी गई इस चीज़ की, तो ये कैंसर उनका बढ़ता बढ़ता उनके दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाता है। तो उनकी तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है अगर ये दूसरे ऑर्गन्स तक फैल गया। तो सबसे पहले हम इसकी अलामात के ऊपर आते हैं कि आपको किस तरह पता चल सकता है कि आप इसका शिकार हो रहे हैं, इस मोजी मर्ज का। तो सबसे पहला इसकी मेन अलामत है कि आपके ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। ट्यूमर जिसे गिल्टी हम कहेंगे आमतौर पर। तो इसके बाद जो है ना, दूसरा इसका जो कॉमन साइन देखा गया है, निपल रिट्रैक्शन, इसको मेडिकल की टर्म में हम इसको कहते हैं, यानी कि निपल का अंदर की तरफ धंस जाना। और तीसरा जो है ना, इसका साइन जो है ना, स्किन रिट्रैक्शन। स्किन जिस जगह ट्यूमर बन रहा है उसके ऊपर वाली स्किन जो होगी ब्रेस्ट की, वो भी अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी। और अगर ये ट्यूमर इस कदर बढ़ चुका है कि वो स्किन तक आ गया है बढ़ते बढ़ते, तो वो स्किन का अल्सर भी काज करवा देगा। और इसके बाद जो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स होती हैं, उनकी बगल के अंदर हमारे होते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स वो एनलार्ज हो जाते हैं, मतलब कि उनकी बगल में भी 2 से 3 गिल्टियां नजर आएंगी। तो इसके बाद सबसे हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इसकी क्यों जरूरी है? अर्ली ऑन इसकी हम अगर इसको प्रिवेंट कर लें, इसके स्प्रेड को, तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर इसको अर्ली ऑन डायग्नोज ना किया जाए तो ये जो है ना, हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक फैल जाएगा, ये हमारे जिगर तक चला जाएगा, ये हमारे बोन्स तक फैल सकता है, हमारी हड्डियों तक या हमारे फेफड़ों तक फैल सकता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स होते हैं, वो अपनी जगह से टूटकर ब्लड के थ्रू हमारे जिगर तक जा सकते हैं और हमारे ब्रेन तक जा सकते हैं। तो अगर इसको अर्ली ऑन डायग्नोज नहीं किया गया तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो उस वक्त जो है ना, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसकी प्रिवेंशन पे आते हैं। प्रिवेंशन हम इसको किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है सेल्फ एग्जामिनेशन। फीमेल्स को चाहिए कि वो खुद अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें। इसमें पहला स्टेप आता है कि वो किस तरह अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं। फीमेल्स को चाहिए कि वो तकरीबन महीने में 1 दफा अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, मतलब कि उसके अंदर देखें कि कोई ट्यूमर तो उनको नहीं फील हो रहा। अगर उनको कोई ट्यूमर फील होता है तो ये एक बहुत परेशानी की बात हो सकती है, तो उनको अर्ली ऑन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो है ना, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की तरह की हमारे पास एक टेक्निक है मैमोग्राफी, जो कि स्पेसिफिकली है ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। तो ऐसी खवातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, तो उन खवातीन को चाहिए कि वो हर साल कम से कम एक ना एक दफा उनको मैमोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उन खवातीन में बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो 30 से 32 साल की खवातीन है, हर खातून को चाहिए कि वो साल में 1 दफा मैमोग्राफी जरूर करवाएं। तो ये हो गई ब्रेस्ट कैंसर की बात। और कुछ चीजें हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो डिफरेंट कैंसर के पेशेंट्स को देखा गया है। अब मैं स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर रहा, अब मैं स्पेसिफिकली हर कैंसर की बात कर रहा हूँ। जब डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर रिसेंट रिसर्च की गई है, ये एक रिसेंट रिसर्च है, तो उनके अंदर 4 प्रॉब्लम देखे गए हैं। तो उसमें आता है कि सबसे पहले नंबर पे, अगर किसी मरीज को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रही हो साल से, क्रॉनिक का मतलब ज्यादा
अगर किसी को साल के लिए कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें कैंसर हो सकता है, उसको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, उसको आंतों का कैंसर भी हो सकता है, उसको जिगर का कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा इसमें पॉइंट आता है हाइपर एसिडिटी। अगर किसी को मैदे की तेजाबियत का इशू ज्यादा रहता है और इसका जो है ना हमारे फूड लाइफस्टाइल के ऊपर आता है कि हम किस तरह की खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट को सिंपल से सिंपल रखें। तो तीसरे नंबर पे आता है अगर किसी की नींद पूरी नहीं है। आजकल जो हमारा कॉमन लाइफस्टाइल है, जो हम स्टूडेंट्स का है, मतलब कि रातों को जागते रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो उनमें भी ये कैंसर का इशू देखा गया है। मतलब उनमें भी कॉमन है कि उनमें कोई भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास चौथा और फाइनल पॉइंट है स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर कोई एक पेशेंट है, किसी में एक कोई भी अगर कैंसर देखा गया है, जो डिफरेंट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये देखा गया उनको क्रॉनिक स्ट्रेस था। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि वो साल हर साल किसी परेशानी में मुब्तला थे। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसे इसे अर्ली ऑन ट्रीट कर लेना चाहिए। अगर किसी को मैदे की तेजाबियत का मसला है तो उसे जल्दी से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको ट्रीट कर लेना चाहिए अर्ली ऑन। और हमें अपना जो है ना स्लीप पैटर्न ये अच्छी बात करनी चाहिए और इसको follow करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम स्ट्रेस कम से कम। तो अब मैं फाइनल मैसेज की तरफ आता हूँ। होम टेक मैसेज क्या है आज के सेशन का? फीमेल्स के लिए ये है कि वो महीने में कम से कम एक दफा खुद को सेल्फ एग्जामिन जरूर करें। जो आजकल की यंग फीमेल्स हैं उनको जरूरी है कि वो महीने में एक दफा खुद को हाथ से सेल्फ एग्जामिन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन अपने हाथ से करें। अगर उनको कोई ट्यूमर या ब्रेस्ट की शेप चेंज होना शुरू हो जाए, वो अर्ली ऑन डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये ना हो कि वो कैंसर जो है ना आपके दूसरे ऑर्गन तक फैल जाए। तो उस टाइम अगर ये कैंसर दूसरे ऑर्गन तक फैल जाता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। अगर हम इसको फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे अर्ली ऑन इसको डायग्नोज कर लें तो ये ट्रीटेबल है। तो पेशेंट 30 से 35 साल तक 40 साल तक भी जिंदा रह सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो खवातीन जिनकी फैमिली में ये देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर का या 30 साल से ऊपर की खवातीन है, उनको चाहिए कि वो साल में एक दफा मेमोग्राफी जरूर करवाएं। तो ये आज का होम टेक मैसेज है, सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी। तो आज का ये हमारा डिस्कशन थी आज के टॉपिक की। तो आई होप आपको इसमें से कुछ फायदा हुआ होगा। So now I'm handing to host Amda. I'm very thankful to all the audience for your patience. Thank you so much, sir. मेंबर्स, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चनिंग है, कोई किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई किसी पॉइंट की, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैम, मेरा नाम मुजफ्फर पाकिस्तान से हूँ। तो मैं अभी एक डॉक्टर हूँ, बस मेरा फर्स्ट ईयर है, लेकिन मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ले रहा है कि अगर इसके लिए फाइट वो जो कहते हैं कि ना कैंसर के इलाज के बारे में हम लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है एक कीमो, एक इसके लिए हम लोग कीमोथेरापी ले सकते हैं या नहीं इसके लिए? हेलो, देखिए, अगर ये जो कैंसर, हाँ जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है। तो कीमोथेरेपी जो है ना इनिशियल स्टेजेस पे रिक्वायर्ड नहीं होती। इनिशियली हम उसको ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं हमारे पास। तो हम अगर कैंसर को हमने अर्ली ऑन डायग्नोज कर लिया तो उसको हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो हम उनसे ट्रीट करेंगे। अगर ये कैंसर जो है ना अगर काफी सारे ऑर्गन्स तक फैल गया है, एक जगह से हमारी पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो तब पे आते हैं।
सही मेरे पास कुछ टाइम पहले हमारे पास एक पेशेंट लेकर आए हुए थे, तो हाँ उन्होंने जी। कहा ये इशू हुआ था, तो डॉक्टर ने उन्हें हाँ स्टार्टिंग में ये डिमांड किया था कि आप कीमोथेरेपी करवा लें, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, जिसकी वजह से वो जब इसका जो स्टार्टिंग था तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब फाइनल स्टेज पे पहुँच गया था, मतलब 2 वीक्स में उसका फाइनल स्टेज पे पहुँच गया था। तो ये मैं इस मतलब क्वेश्चन थोड़ा-सा मुझे माइंड में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और मुश्किल से आज तक इसका मुझे कोई आंसर प्राप्त नहीं मिला। तो आप मुझे इसके बारे में कुछ गाइड करना। चलें, वो जिन डॉक्टर के पास गई होंगी, मैं तो अभी 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, वो एक सीनियर डॉक्टर होंगे और उन्होंने उनकी सिचुएशन को जाँचा होगा, डेफ़िनेटली उन्होंने ऐसे रिकमेंड नहीं किया होगा कीमोथेरेपी किसी को, तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास गई होंगी। मैं तो अभी 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे थी वो मैंने आप लोगों तक डिलीवर की है। तो बेसिकली कोई पेशेंट को तो नहीं पता होता कि उसकी क्या सिचुएशन है, ये तो सिर्फ़ डॉक्टर को ही पता हो सकती है। कीमो जो हमने वहाँ पे इन्होंने करके कीमो फर्स्ट दी थी, तो आप हमें सिर्फ ये बता दें कि हम अगर जो पेशेंट को कीमो के अलावा अगर हम इसको और कौन-कौन से मतलब इलाज के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुझे ये नॉन यहाँ ये जो डॉक्टर बनेश्वर का लोग कहते हैं कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास, या हमें ये कहा जाता है कि आप अपने पास के डॉक्टर्स के पास ना जाइए कि आपको इसका यहाँ पे जो कैंसर के वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल हॉस्पिटल भी नहीं है ना, तो हाँ जिसकी जी, वजह हाँ से जी। यहाँ पे पेशेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट का चांस नहीं मिलता। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, तो मायूस होके चले जाते हैं ना, कि एक ऐसा ट्रीटमेंट हो, अगर आप थर्ड ईयर में भी हो, तो मैं ये कहता हूँ कि आप माशाल्लाह मुझसे सीनियर हैं। आप जिस हाँ जी, सेमिनार हाँ में जी। बैठे होंगे, जिस डॉक्टर के साथ आप हो, तो आप हमें मतलब एक ऐसा अवसर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये कह सकें कि आपका इलाज हो सके। इसकी वजह से ये बिल्कुल, क्वेश्चन आपकी बात ठीक है। आप जो है ना, आप किसी अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास उन पेशेंट को जाना चाहिए। अब हमारे पास एक एंटी कैंसर हॉस्पिटल है, शौकत खान हमारे पास है, ये एक मशहूर हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए, अगर उनको नहीं है तो वो ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएँ जहाँ पे जो है ना, जो स्पेसिफिकली इस कैंसर को ट्रीट कर रहा है। तो अगर वो एक जगह से सैटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वो अपना ट्रीटमेंट किसी सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट उनसे करवा सकते हैं। बिल्कुल ये आपने सही है कि ये यहाँ पे बलुचिस्तान में हम लोग कहीं की शौकत खान हॉस्पिटल भी है, तो इस वजह से ये तो यहाँ पे हम लोग एक हाँ जी, कैंसर को भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पेशेंट की ज़िंदगी का मसला होता है, तो उनको इस हवाले से ट्रैवल करना चाहिए और एक अच्छे और बेस्ट ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। बस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस बारे में, तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तो मतलब हमारा दिल और भी बड़ा हुआ कि हम अपने पेशेंट को जिस तरीके से ट्रीट कर सकें, तो ये तो बेहतर है। हाँ जी, यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है, हाँ जी, हाँ जी। चलो हम काम कर रहे हैं, वैसे जो हाँ गुर्बत का जी। कैंसर है उस पे भी काम करना चाहिए। अभी आपके इस सवाल का जवाब जो हमारे सेशन से रिलेटेड नहीं है, तो मैं इस पे सर, बात आप नहीं एक करना चाहता। वेलफेयर चला रहे हैं, तो ये भी इसके देखें, साथ ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ स्पीकर हूँ, जो इस वेलफेयर की होस्ट हैं। आप ये बात उनसे कह सकते हैं, ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। और मुबीन, ये जो हमारी होस्ट है, आप पर आप उनसे ये सवाल कर सकते नहीं, मैंने तो एक आपको सजेस्ट किया था कि यार ये भी होना चाहिए।
तो समझे। नहीं, आपका कहना ये है कि इस फाउंडेशन के थ्रू मतलब कि जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, आपका बेसिकली सवाल ये है? जी, जी, ये है। तो डेफ़िनेटली ये लोग करते होंगे। आज इनका ये सेमिनार हो रहा है तो लाज़मी नहीं है कि आप लोगों को आगे बताएँ कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं, डेफ़िनेटली बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार ये नहीं कर रहे। लेकिन मैंने तो वैसे बात की है भी यार इसके लिए भी जद्दोजहद करनी चाहिए। शायद वो हमसे अच्छा, आप हाँ बेहतर कुछ कर रहे सही हैं। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वो वालेकुम अस्सलाम। लिसन, आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपकी जो भी क्वेरी है, बाकी आपको वहाँ पे मैं आस्क कर दूँगी। जी, क्या फरमाया आपने? आपने बोला है कि पुअर लोगों की हेल्प के लिए हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते होते हैं। जी, सोसाइटी का जी। ये भी है एक पर्पस। जी, जी। मैंने तो वैसे आप पूछा था, होना आप चाहिए यार इसमें कौन। नहीं, नहीं, आप इसमें अगर हेल्प करना चाहेंगे तो ज़रूर डेफ़िनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे हम। जी, मैं इंशाल्लाह ताला हाज़िर हूँ। तो जी, मैं थैंक यू भी एक सो वेलफेयर पे काम कर रहा हूँ तो इसीलिए पूछा था। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, जी। वेलकम हो गया। सर हसन हाँ सर, एक जी, हाँ जी। क्वेश्चन है मिर्ज़ा खालिद का कि एसिडिटी एंड स्ट्रेस की वजह से अगर कैंसर डायग्नोज हो रहा है तो आपको हर हाँ जी। दूसरा स्ट्रेस एंजाइटी में मुब्तला है तो किस तरह बचा जाए? तो बेसिकली ये देखा गया जो कैंसर के डिफरेंट पेशेंट्स थे, तो उनमें ये 4 चीज़ें कॉमन थी। मतलब कि उनमें एसिडिटी थी, उनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन थी, उनकी नींद का इश्यू था और उनका जो है ना स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो ये हर इंसान के अपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर है कि वो चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको बार-बार परेशान कर रही है तो आपको चाहिए क्या डॉक्टर से किसी को जाएँ। ये इंसान के खुद में जो एसिडिटी का इश्यू है ये मोस्टली रिलेटेड होता है हमारी के साथ। तो हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए मतलब कि सिंपल खुराक खानी चाहिए अपनी। आजकल तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम फैटी फूड्स ले रहे हैं हम ये जो हमारे पास फास्ट फूड आ गई हैं तो इनकी कंज़म्पशन आजकल ज़्यादा हो गई जिसकी वज़ह से एसिडिटी के मसले आ रहे हैं और खाना टाइम पे ना खाना, ये भी एक बड़ी वजह है एसिडिटी की। तो उसके बाद एक मेन वजह है एसिडिटी की अगर हम खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं। खाना खाने के तकरीबन घंटा तक आधा घंटे तक हमें नहीं सोना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो ये चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में भी है। हम स्ट्रेस लेवल को कम से कम करें, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें और अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपने किसी डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर रेडियोथेरेपी का बता दें कि ये किस हद तक सक्सेसफुल है, इससे मतलब कंप्लीटली रिकवर हो सकता है पेशेंट या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं कि जिनकी रेडियोथेरेपी होती है। तो अगर किसी का कैंसर सेकंड स्टेज में पहुँच गया है, थर्ड स्टेज में पहुँच गया है, बेसिकली हम रेडियोथेरेपी में करते ही हैं कि रेज़ के थ्रू जो है ना हम जो एब्नॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी हम ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसी तरह उन रेज़ की वज़ह से जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हेयर सेल्स हो गए, तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी तरह आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो वो अक्सर उनके बाल गिर जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, काफ़ी हद तक देखा गया है। अब अगर कैंसर की 4 स्टेजेज़ होती हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका लास्ट स्टेज पे कैंसर चल रहा है, तो उसकी हम रेडियोथेरेपी के थ्रू उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है उसको 4th स्टेज कैंसर हो गया, तो हम उसको रेडियोथेरेपी के ज़रिए उसको मज़ीद 3 से 4 साल तक उसकी हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल इसका फ़ायदा है रेडियोग्राफी का अगर इनिशियल स्टेजेस में हम थेरेपी करेंगे तो पेशेंट की तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। अगर हम लास्ट स्टेज पे कैंसर की रेडियोथेरेपी कर रहे हैं तो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। जी थैंक यू सर। तुम्हारे पहुंचने से यू एक आर मिनट पहले हम वेलकम। पहुंच जाएंगे। हाँ, ओके। सर एक
जो एक्सरेज के बारे में कहा जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरेज करवाते हैं तो उनकी वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं, तो क्या ये भी कैंसर का काज बन सकती है? हाँ जी, ये भी देखा गया है, क्योंकि जो एक्स-रेज़ होती हैं नॉर्मली, ये जो हम साल में कभी 1-2 दफ़ा एक्स-रेज़ करवा लेते हैं, तो उनका कोई इतना इश्यू नहीं होता। तो ये एक्स-रेज़ जो है ना, ये मोस्टली उन लोगों में देखा गया है कि जो उसके इर्द-गिर्द काम करने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्स-रे टेक्नीशियन है, तो उसका तो हर टाइम एक्स-रेज़ के साथ एक्सपोज़र रहता है, वो उसी रूम में रहता है। जो लोग आते हैं उनकी एक्स-रे करता है, तो उनमें ये देखा गया कि ये मोस्ट कॉमन होता है। क्योंकि ये एक्स-रेज़ जो है ना, ये अगर बॉडी में काफ़ी देर तक जाती है, जो टेक्नीशियन है, उनका ज़्यादातर एक्सपोज़र रहता है, तो सेल्स की जो है ना, वो एब्नॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ मोस्टली उनमें कॉमन देखा गया है। नॉर्मली ये जो हम साल में 1-2 दफ़ा करा लेते हैं, उसका बिल्कुल भी कोई इतना ख़ास इश्यू नहीं है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने बात की कि वो जाग रहते हैं तो उसको कैंसर हो, और एक बात तो हमें बीएस के जो स्टूडेंट होते हैं तो तकरीबन 2 मंथ्स बाद का एग्जाम होता है, तो हर वक्त स्टडी में लगे रहते हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा मशवरा कि वो अपना स्टडी भी उनके कंटिन्यू हो रही है। देखिए, जो आजकल स्टूडेंट्स का इश्यू है ना, तो आजकल सबने अपनी नाइट रूटीन बनाई हुई है जागने की। अगर हम एक स्लीप रूटीन अपनी एक सेट कर लें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी के हवाले से परेशान हैं, वो अपनी स्टडी को इन टाइम कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल वो उनको सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए, सारा दिन अपनी स्टडी करें, अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, स्टडी टाइम अलग रखें, बाकी करने के लिए वो टाइम पे अलग रखें, और अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम। तो इस तरह से जाके जो है ना, करीबन रात के 11-12 बजे सो जाए। इस तरह से अगर आप एक अपनी रूटीन करेंगे तो नींद की जो है ना, ये डिस्टर्बेंस, ये मेरे ख्याल में इनसे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। 9654 उनका पासवर्ड है। अच्छा, कॉल करें। उनकी कॉल ही आ रही है। मिराज रहमानी। मिराज साहब करया कल आ रहा वासा। अच्छा ठीक हो गया, मैं कॉल पे जा रहा, कॉल पे आ गया आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ आ गया। वालेकुम अस्सलाम। सिमन सर, ये काफ़ी टाइम ऐसा सुनने में आता है कि कैंसर का कोई प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कि ये ख़त्म नहीं होता। ऐसे होता है कि मेडिसिन या ट्रीटमेंट करवाएं, थेरेपीज करवाएं तो लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर कोई इलाज नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो क्या ऐसा ही है कि इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं है।
डायग्नोज कर लेते हैं फर्स्ट या सेकंड स्टेज में। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो अगर इसको हम फर्स्ट या सेकंड स्टेज में सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू अगर हम इसको डायग्नोज कर लें तब पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी रेडियो थेरेपी के थ्रू हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और अगर ये कैंसर पहुंच गया थर्ड या फोर्थ स्टेज के ऊपर तो इस स्टेज के अंदर ये जो है ना हमारे बाकी पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। तो फिर भी हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के थ्रू हम पेशेंट्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसको कैंसर के फर्दर स्प्रेड को बढ़ा के हम उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर इसको हम जल्दी डायग्नोज कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। अगर इसको हम इनिशियल स्टेजेस में डायग्नोज कर लें तो इसका ट्रीट पॉसिबल है। यानी कि अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज पे हो तो ये डायग्नोज हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये फर्स्ट सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो गया तो इसको हम अर्ली ऑन इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली इसको खत्म भी कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। वेलकम। अगर किसी और की किसी भी किस्म की क्यूरी है तो वो सर से पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन सर के कैंसर क्या जेनेटिक होता है कि अगर वो है तो वो नेक्स्ट उसकी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। मरियम आपका सवाल क्या था? जी ऐसे हो सकता है कि कैंसर जो है वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो, अगर किसी के पेरेंट्स में है तो चिल्ड्रन में भी ऐसा हो, चांसेस होते हैं इसके? हाँ जी बिल्कुल। ये अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो इसके हाई चांसेस होते हैं। अगर किसी की फैमिली में किसी के अम्मी को ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसके बच्चों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें भी ये हो सकता है। तो इसको हम इस घबराने की बात नहीं है, वहम करने की बात नहीं है। इससे हम बेसिकली हम प्रिवेंशन किस तरह करेंगे? इस जो जेनेटिकली है कैंसर, इसमें हम सबसे पहले करेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन।
जो ख्वातीन हैं जिनकी फैमिली में ये इशू देखा गया कि उन्हें चाहिए कि वो खुद को सेल्फ एग्जामिन करें, तकरीबन महीने में 2 दफ़ा वो एक टाइम निकाल के सेल्फ एग्जामिन करें तवज्जो के साथ कि उन्हें कोई अंदर कोई ट्यूमर तो फील नहीं होता। और इसके अलावा मैमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। मैमोग्राफी एक स्पेशल टेक्निक है जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हमने इसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर लिया तो डेफिनेटली इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से फीमेल्स में देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की मतलब शरह बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह से मेल्स के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? तो मेल्स के लिए क्या मैमोग्राफी? जी सर, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मेल्स में भी ये हो रहा है लेकिन रेयर है, तब चांसेस कम है। नहीं, मेल्स के अंदर तो बेसिकली ऐसा कोई इशू नहीं देखा गया। जो हमारे अगर हम ब्रेस्ट की एनाटॉमी देखें तो इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो उनके अंदर ये कैंसर बनना शुरू होता है। जो लोब्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो जो हम अगर मेल्स के अंदर देखें तो ऐसी कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है मेल के अंदर, तो मेल के अंदर बहुत कम ही कोई चांस होगा। मैंने तो नहीं सुना कि किसी मेल को ये कोई ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। मेल्स के अंदर होता है प्रोस्टेट कैंसर, जिस तरह फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की इशू का ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, इसी तरह मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का इशू इसी रेशो के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चाहते हैं तो काइंडली वो अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से सेशन को क्लोज करें और टाइम मैच कर सकें। अभी बता दे कि कैसी डाइट लेनी चाहिए ना, यहाँ तक ना देखें, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। तो अभी जो है ना, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ क्लासिफाइड डॉक्टर के मैं आपको बाकी इश्यूज के ऊपर भी कोई मेडिसिन सजेस्ट कर सकूँ। जब मैं इंशाल्लाह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा तो आपकी सब क्वेरीज के आंसर दूँगा। तो नहीं बोल सकती सारा वो Thank you so much sir for giving your precious time. आपने अपनी बिजी लाइफ में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव नॉलेज प्रोवाइड किया और हमें इतने जो है ना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने हम सबको जो है ना अवेयरनेस प्रोवाइड की। You are welcome. You are welcome.
And thank you to Pakistan Eagle Foundation for conducting this informative session on breast cancer. किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो वो सर से पूछ सकते हैं।